احتساب عدالت لاہور نے صاف پانی کمپنی پروجیکٹ کو صاف اور شفاف قرار دے دیا۔ صاف پانی کمپنی ریفرنس قمرالاسلام سمیت 16 ملزمان کی بریت کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تمام متعلقہ قوانین پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ احتساب عدالت نے 23 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پروزیکیوشن کوئی خلاف ورزی یا لاقانونیت ثابت نہیں کر سکی ہے۔ پروجیکٹ میں تبدیلیاں متعلقہ کمیٹیوں کی سفارشات سے کی گئی۔ پروجیکٹ میں تبدیلی کا مقصد منصوبے کو مزید بہتر بنانا تھا۔ نیب نے صاف پانی کمپنی کا ضمنی ریفرنس بھی دائر کیا۔ شہباز شریف کے داماد کے پلازے کا ایک فلور کرائے پر صاف پانی کمپنی کو دیا گیا۔ علی ٹریڈ سینٹر کا تیسرا فلور اوپن بیڈنگ کے ذریعے دیا گیا۔ پروزیکیوشن کا الزام ہے بغیر قبضہ ایڈوانس کرایہ دیا گیا۔ حقائق کے مطابق صاف پانی کمپنی کے باقاعدہ قبضہ کر لیا۔ ریکارڈ کے مطابق صاف پانی کمپنی ریفرنس نیب جرائم میں نہیں آتا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض سے۔ جی شاداب ریاض بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں صاف پانی پروجیکٹ کو احتساب عدالت کی جانب سے ایک کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے صاف پانی پروجیکٹ کو صاف اور شفاف قرار دے دیا ہے۔ صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی جو ہے وہ یا لاقانونیت سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ صاف پانی کمپنی ریفرنس میں لیگی رہنما راجہ قمرالاسلام سمیت 16 ملزمان کو جو ہے وہ بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کہا ہے کہ سروے سے لے کے انویسٹمنٹ تک ہر پروجیکٹ مکمل کرنے تک تمام رولز اور قوانین پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی نے 23 صفحات پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ پروسیکیوشن صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی یا لاقانونیت جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی۔ پروجیکٹ میں جو بھی تبدیلی کی گئی متعلقہ کمپنیوں کی سفارشات اور منظوری سے کی گئی۔ اسی طرح پروجیکٹ میں جو بھی تبدیلی کی گئی اس کا مقصد منصوبے کو مزید بہتر بنانا اور زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ کمیٹیوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پروجیکٹ میں تبدیلی سے منصوبے کی اصل لاگت میں اضافہ نہ ہو۔ نیب نے صاف پانی کی ضمنی ریفرنس بھی دائر کیا۔ شہباز شریف کے داماد علی عمران اور بیٹی رابعہ عمران کی ملکیتی پلازا کا ایک فلور کرائے پر صاف پانی کمپنی کو دیا گیا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ علی ٹریڈ سینٹر کا تیسرا فلور اوپن بیڈنگ کے ذریعے صاف پانی کمپنی کو دیا گیا۔ پروسیکیوشن کا الزام ہے کہ فلور کا کبھی قبضہ نہیں لیا گیا اور ایڈوانس کرایا دیا گیا، جس میں جبکہ حقائق کے مطابق صاف پانی کمپنی نے نہ صرف باقاعدہ قبضہ لیا بلکہ نئی انتظامیہ نے جو ہے وہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی لاقانونیت، رولز کی خلاف ورزی یا مالی فوائد حاصل کرنے کی بات سامنے نہیں آئی۔ وسیم اجمل نے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ وسیم اجمل نے شریک ملزمان کو کوئی غیر ضروری فائدہ نہیں دیا۔ علی عمران کی کمپنی اور صاف پانی کے درمیان معاملہ معاہدے کے قواعد و ضوابط پورے نہ کرنے کا تھا۔ دونوں کے درمیان کیس نیب کے قوانین کے زمرے میں نہیں آتا۔ فیصلے کے مطابق نامزد ملزمان نے بریت کی درخواست نیب ترمیمی آرڈیننس کی روشنی میں دی۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق نیب ترمیمی آرڈیننس زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، نیب ترمیمی آرڈیننس کے سیکشن 4 کے تحت زیر التوا کیسز اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق صاف پانی کمپنی ریفرنس نیب کے جو ہے وہ جورسڈکشن کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح عدالت ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو منظور کرتی ہے۔ جی شاداب ریاض، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر مملکت صاحبزادہ محمد محمود سلطان کی ملاقات میں رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ اور ایم پی اے شہباز احمد بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، فلاح عامہ کی اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوامی ترقی کے راستے میں اپوزیشن کے منفی حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اپوزیشن نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا، پی ٹی ایم صرف دکھاوے کا اتحاد ہے۔ وزیر اعظم کی ایمانداری کے سامنے کرپٹ عناصر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد ہے۔ منتخب نمائندوں کی مشاورت سے حلقوں کو عوامی مسائل حل کر رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کیے ہوتے ہیں۔
بتائیں کہ ٹماٹر کی قیمت میں ایک ہفتے میں 15% کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ شماریات ڈویژن کے مطابق ٹماٹر، چینی، انڈا، پیاز، دال، مونگ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں سرخ مرچ پاؤڈر کی قیمت میں 31.44% کمی ہوئی ہے۔ دال مونگ 27.75، چینی 4.78% کی کمی میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چکن 4.51، پیاز 4.16% اور آلو کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے کو آئی ہے۔ نے سیوٹ روبوٹک سرجری اینڈ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ جراحی کے شعبے میں روبوٹک سرجری ایک انقلابی اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ روبوٹ سے انسان کے جسم کے باریک اعضاء کی سرجری بھی کر سکتے ہیں۔ مصنوعی انٹیلیجنس کو چلانے کے لیے بہترین سرجن کا ہونا لازمی ہے۔ SIUT میں روبوٹک سرجری سے یورولوجی کے ساتھ دیگر علاج بھی ہو سکیں گے۔ پہلی مرتبہ 2017 میں سیوٹ اور سول اسپتال میں روبوٹک سرجری کا سسٹم خریدا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سیوٹ کو روبوٹک سرجیکل ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ سینٹر سے نئے سرجن سمیت ملک بھر میں سرجری سے کام کر سکیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اصغر عظیم سے۔ جی اصغر عظیم، بتائیے گا۔ اصغر عظیم، اس حوالے سے بتائیے گا۔ حصے ہوتے ہیں جہاں ڈاکٹر کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں جو ہے اس روبوٹک سسٹم کے ذریعے سرجری کی جا سکتی ہے۔ سرجری کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ انتہائی آسان اور جلد صحتیابی کی طرف مریض کو لے کے جاتا ہے۔ یہ حکومت سندھ نے 2017 میں اس کا باقاعدہ ایک سسٹم خریدا تھا، جس کے بعد آج جو ہے تقریباً 4 سال کے بعد اس کا باقاعدہ وزیر اعلیٰ سندھ نے SIUT میں افتتاح کیا ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کی نگرانی میں یہ سینٹر کام کرے گا۔ اب تک جو ہے 2017 سے اب تک 1000 سے زائد مریض جو ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں، فیضیاب ہو چکے ہیں اس روبوٹک سرجری کے تحت۔ ہم وزیر سندھ نے ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ باقاعدہ ادیب رضوی کو درخواست کی ہے کہ ان سے کہا ہے کہ وہ ایک سینٹر قائم کرے، ٹریننگ سینٹر، جہاں پر روبوٹک سرجری کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے اور مزید ڈاکٹرز جو ہے وہ اس حوالے سے تیار کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سندھ کے شہری وہ فیضیاب ہو سکیں۔ بہت شکریہ اصغر عظیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا، میں نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے۔ سندھ میں خواتین ڈاکٹرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کرپٹ افراد کو یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر لگایا گیا۔ سندھ میں ہماری یونیورسٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جتنے مرضی کیس بنا دے پھر بھی عوام کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو۔ پارٹی کے نام پہ بھی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی اس کو ہراساں کیا گیا، اور سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ وہ سندھ کی بیٹی پروین رند کہتی ہے کہ جب میں رو رہی تھی، جب میں دہائیاں دے رہی تھی، جب میں شکایت کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ منسٹر صاحبہ موجود ہیں۔ میں نے کہا ہماری ماں موجود ہے یہاں، اس نے جا کے منسٹر صاحب کے سامنے بات رکھنی چاہیے، انہوں نے سر پہ ہاتھ تک نہیں رکھا، سننے کی کوشش نہیں کی، چونکہ ان کے کماؤ پوت، ان کو بھتے دینے والے لوگ ان یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں۔ وہ انیلا عطاء الرحمان جس کی یونیورسٹی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، لاڑکانہ میں۔ بلاول زرداری تم گھوم پر رہے ہو لاہور میں، تمہارے لاڑکانہ میں، ذوالفقار علی بھٹو کے لاڑکانہ میں معصوم بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اگر سندھ کی بیٹیوں کے، سندھ کے عوام کے، سندھ کے معصوم لوگوں کے ایشو کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے 100 کیس بنا دیں، 22 فروری کو ملتان میں صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ حسان خاور کہتے ہیں کہ 593 اسپتال صحت کارڈ کے پینل پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 31,000 مریض صحت کارڈ پر ڈائلسس کروا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان میں 1 لاکھ افراد ڈائلسس کروا چکے ہیں۔ صحت کارڈ منصوبے کے لیے 500 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت کارڈ سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ صحت کارڈ وزیر اعظم عمران خان کا انقلابی قدم ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو۔
अब आपको बताएं कि टिक टॉक का जुनून मुस्तकबिल के मामारों के लिए तबाही का बायस हो गया। पुलिस की यूनिफॉर्म और गाड़ी पर बैठकर गाने की वीडियो बनाई गई। अंबर नामी लड़की ने पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाकर वायरल कर दी। पुलिस के खामोश रहने पर दूसरी बार फिर एक लड़की ने पुलिस की गाड़ी पर बैठकर वीडियो बनाई। दूसरी बार उसी लड़की ने पुलिस की गाड़ी पर बैठकर दोबारा वीडियो बनाई तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने गाड़ी पर बैठकर टिकटॉक बनाने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। पुलिस ने टिकटॉक बनाने वाली दोनों लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी असगर मलिक से। जी असगर मलिक, बताइएगा। जी हाँ, पूरे मुल्क की तरह जिला उकाड़ा में भी जो टिकटॉक का जुनून है वो सर चढ़कर बोलने लगा और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लड़कियों ने पुलिस की यूनिफॉर्म और पुलिस की गाड़ियों को बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में एक अंबर नामी लड़की ने पुलिस की यूनिफॉर्म बनाकर मुख्तलिफ औकात में वीडियो वायरल की। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई तो पुलिस भी हरकत में आ गई, जिस पर पुलिस डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार ने फौरन एक्शन लेते हुए एक लड़की अंबर नामी लड़की के खिलाफ FIR का इंदराज करके उसकी गिरफ्तारी कर ली। जबकि दूसरा जो वाकया शेरगढ़ पुलिस की तरफ से के गाड़ी के ऊपर बैठकर लड़की फहश गानों पर डांस करती रही, उस वक्त तक पुलिस खामोश तमाशाई की सूरत में बने रहे। मगर जब जैसे ये भी वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस दोबारा हरकत में आई। मगर अभी ताहाल लड़की की गिरफ्तारी ना हो सकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए DPO उकाड़ा ने टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। जी असगर मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी दाखिला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद को कूड़ा साइड और डंपिंग साइड ना बनाने का जिम्मेदार कौन है? अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ज़मीन है ना ही साइड। अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी दाखिला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रंग बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन रंगों के बारे में भी बात ना की जाए। हाँ, खामी को आइडेंटिफाई करें, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, ये जो हमारे पार्क्स डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इनकी पजीराई करने की ज़रूरत है कि उन्हीं इख्तियारात में रहते हुए ये लोग अपने एरियाज़ को ठीक कर रहे हैं, अपने एरियाज़ को बेहतर बना रहे हैं। वो पार्क्स, वो प्लेग्राउंड जो उनके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे, उनको खोला जा रहा है ताकि शहरी आ सकें और उस खुली फ़िज़ा को से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं आपको मिसाल दूंगा, हमने 100 पार्क्स का अपना टारगेट रखा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए। कोई नए वसाइल नहीं आए, कोई नई फंडिंग नहीं आई, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल किया और वो पार्क्स जो कि कचरा कुंडी में तब्दील हो गए थे, वो पार्क्स जिनके ऊपर चाइना कटिंग हो गई थी, वो पार्क जिस पे इंक्रोचमेंट थी, उन पार्कों को हमने क्लियर करना शुरू किया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पिछले 3 माह के अंदर हमने 17 पार्क्स हैं जो नेबरहुड पार्क्स थे, उनको ठीक करके वहाँ की नेबरहुड के हवाले किया। हमने बागबान कम्युनिटी बनाई ताकि वो इलाके के बड़े बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, बच्चे उसको लुक आफ्टर कर सकें। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की मैं अगर आपको मिसाल दूँ, 19 पार्क वहाँ पे हमने ठीक किए और अगेन लोगों के ताउन के साथ उनको खोल के लोगों के हवाले किया। इसी तरह KMC की अगर आप बात करें तो कराची के बड़े बड़े पार्क्स, उनके ऊपर हमने काम किया। आज आप फ्रेयर हॉल जाइए, फ्रेयर गार्डन जाइए, आपको वहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आती, आपको वहाँ पर फूल नज़र आते हैं। और वो फूल किसने लगाए? इसी KMC ने लगाए। बर्न्स गार्डन 1927 का अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ गार्डन था, बंद पड़ा हुआ था, उसका रास्ता नहीं था। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों के अतराफ़ में है ये
कोई चंद्रीगढ़ रोड पे काम करता है, कोई ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे काम करता है, उसकी एक्सेस नहीं थी उस पार्क की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी केएमसी ने उसकी एक्सेस को डेवलप किया। पीछे एम्प्रेस मार्केट की तरफ जाइए, एम्प्रेस मार्केट का माजी में क्या हाल होता था, आज आप जाके देखें कि वहाँ सब्ज़ा है, हरियाली है। मैंने खुद स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पौधे लगाए थे। आज कोई 1.5 साल हो गया इन पौधों को लगे हुए। मुझे खुशी होती है कि वहाँ पे नारियल जो लगाया, मोरिंगा जो हमने लगाया, वो आज माशाल्लाह 15-15, 20-20 फुट के हो चुके। दिल खुश होता है इस चीज़ से। जहांगीर पार्क आप जाइए, क्या हाल था आज से कुछ साल पहले जहांगीर पार्क का, और आज जहांगीर पार्क की क्या सिचुएशन है। एक बेहतरीन ओपन स्पेस हम कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत ने डेवलप की है। किडनी हिल जाइए, किडनी हिल जाइए, 1.5 लाख पौधे केएमसी ने लगाए हैं वहाँ पर। जहाँ इंक्रोचमेंट थी, तबाही थी, आज वो डिफरेंट मंजर पेश करता है। YMCA, शादियाँ होती थी वहाँ पे, दीवार बनी हुई थी, आपको नज़र नहीं आता था अंदर क्या है। आज उसको एक बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी में सिंध हुकूमत ने कन्वर्ट किया। आप सहाफ़ी दोस्त मुझे शाम को वहाँ पे वॉक करते हुए नज़र आते हैं, मुझे बुज़ुर्ग वहाँ पर बैठे हुए नज़र आती हैं, मुझे अपनी माएँ बहनें वहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आती हैं। इसी तरीके से क्लिफ्टन की तरफ आप जाइए, वहाँ पर हमने वो ज़मीन जहाँ पर KPT कहती थी हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, वहाँ पर लोगों ने जाके कचरा फेंका। क्लीन कराची कैंपेन का हमने उसको साफ़ करना शुरू किया, और आज जाके देखें आपको खुशी होगी कि 20 एकड़ पर इन्हीं लोगों ने, इसी हुकूमत ने वो सब्ज़ा क्रिएट किया, और वो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर हम वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने बीच की उसकी एक्सेस बनाई है, आप जाके देखें, आपका दिल खुश होगा। ये उसी कराची में हो रहा है, ये मुस्बत चीज़ें हो रही हैं। मैं कतई तौर पर, ये मैं बात कर रहा था तो तितली गुजरी, ये तितलियाँ खो गई थी यहाँ पे, ये नज़र नहीं आती थी। इस शहर में क्या क्या नज़र आता था आप सबको पता है, आप सीनियर लोग हैं मुझसे। तो ये बदल रहे हैं हम चीज़ों को। अभी एक और आपको अच्छी खबर दूँ इंशाअल्लाह, ये बाग़ जना हमारा जो है, बहुत सारे आपके साफ़ी दोस्त वहाँ जाके भी वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, सारा शहर वहाँ पर आता है, उसको रिवैम्प करने का काम हमने स्टार्ट कर दिया। वहाँ खूबसूरत जो हमारे मकामी तोते हैं, उनके ऊपर एक एवियरियम स्टैब्लिश करें ताकि हमारे बच्चे आ सकें, वो बच्चे आके देखें वो तोते, हमारा जो कल्चर है, हमारे माशरे का जो हिस्सा है, उनको देखें, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो, इंजॉय करें। ये सस्ती इंटरटेनमेंट जो कि शायद अमीर को तो मिलती है, वो दुनिया भर में चले जाता है, लेकिन गरीब को नहीं मिलती, ये हम करने की कोशिश करें। और आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़िला किमाड़ी लगता है लियारी का कोने वाला हिस्सा है, मिर्ज़ा आदम खान रोड लगता है वो जनूबी का हिस्सा, लेकिन है किमाड़ी ज़िले में आता है। वो लियारी नदी के ऊपर एक खूबसूरत 5 एकड़ पर हमने पार्क डेवलप किया है, जिसमें सब्ज़ा है, हरियाली है, और उसके साथ साथ एक फ़ुटबॉल ग्राउंड है। ये सारे काम, कहीं आपको वसाइल की बात करते हुए मैं नज़र नहीं आऊँगा। मसाइल का अदराक है, और मसाइल का अदराक करते हुए चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो लोग इसके ऊपर मनफी चीज़ों को उठाना चाहे वो मनफी चीज़ों को उठाएं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, बहुत मनफी चीज़ें इस शहर के हवाले से हो गई, अब वक्त आ गया है कि हम अपने शहर को ओन करें और अपने शहर का पॉजिटिव इमेज दुनिया भर के सामने उजागर करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त मीडिया के लिए स्याह तरीन दौर चल रहा है। स्विचेस न्यूज़ चैनल के बनाए गए हैं, पैमरा के हवाले कर दिए गए हैं। पैमरा जब चाहे किसी न्यूज़ चैनल का स्विच ऑफ कर देता है। वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल उठाना क्या जुर्म है? अगर उस पर बात करना जुर्म है कि एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 1 का जो है ना स्विच ऑफ कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त जो है, इज़हार राय पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 19 भुट्टो शहीद ने आइन में डाला था, आर्टिकल 19A आसिफ अली जरदारी साहब ने आइन में डाला ताकि लोग इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल कर सकें। अब बदकिस्मती के साथ हमने तो अच्छी नीयत के साथ ये तमाम चीज़ें की, अब उसका गलत इस्तेमाल अगर मौजूदा हुकूमत कर रही है, वो मौजूदा हुकूमत जो कि एक ज़माने में आपकी भी डार्लिंग होती थी, शायद ये डार्लिंग को अब ये मिटा दें, शायद मैं ऑफ एयर हो जाऊँ। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि वो कभी कभार कुछ मेकअप शेकअप करके किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता है, लेपा पोती करके, लेकिन असल जो उसकी चीज़ें हैं ना, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। तो PTI का वो असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है। इस पाकिस्तानी आवाम को उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का वादा किया था, मईशत को तब्दील करने का वादा किया था। आप सहाफ़ियों को कहा था कि आप चौथा सुतून हो पाकिस्तान का, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने हर चीज़ के ऊपर यू टर्न लिया है,
पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ यू टर्न लिए, उसी तरीके से सहाफ़ियों के साथ यू टर्न ले रहे हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है 3.5 सालों में। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में माजी में आप लोगों ने क्या नहीं कहा और आज भी क्या नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हम आपकी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ वही मुआशरे तरक्की कर पाते हैं जहाँ पर लोगों को बात करने की इजाज़त हो, उनकी ज़बाबंदी ना की जाए। तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक अमल है, और फौरी तौर पर ये जो गैर आइनी फैसला पेमरा की जानिब से किया गया है, इसको फौरी तौर पर वापस लेने की ज़रूरत है। साहब ये है कि यहाँ पर जो ये करके मैं आपके साथ जिस कल्चर की आपने बात की कि आप कराची का मस्बत चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का वजीर आजम चाइना में बैठकर कहे कि हमारा मुल्क ही करप्ट है, तो चाइनीज़ तो ये कहेंगे जब वजीर आजम कह रहा है मुल्क करप्ट है तो माना बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि जिस बल्दियाती निज़ाम को लेकर आपकी बहुत ही सियासी जमायतों ने तनकीद की थी, वो कहाँ गया? देखिए, मैंने कहा ना, दीन भी हमारा कहता है कि ऐप को छुपाओ, अच्छाई को प्रमोट करो। अब अगर टीम का कप्तान ये कहे कि मेरी टीम निकम्मी है, तो फिर कौन आपको बुलाएगा, कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के कप्तान होने की हैसियत से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जब उनने कहा ना, आपको याद होगा कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि यह निज़ाम करप्ट है, टैक्स पे ना करो। आज खुद कंप्लेन करते हैं यार कोई टैक्स ही पे नहीं करता इस मुल्क में। तो वो सारी बातें जो माजी में उन्होंने की थी वो आज उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो नुकसान किसी सियासी जमात को नहीं पहुँचा रहे होते, वो अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। जब आपने शहरियों को कहा था ना कि टैक्स ना पे करो, तो आपने नवाज शरीफ का नुकसान नहीं किया, आपने आसिफ जरदारी साहब का नुकसान नहीं किया, आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूँ ये मनफी सोच है जिसको हमें तर्क करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया को आप जाएंगे ना, वो कहेगा अपने मुल्क के बारे में कि मेरा मुल्क जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन है, मेरा मुल्क जो है ना वो बेहतरीन फ़िज़ा प्रोवाइड करता है कि आप आइए काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं हम करप्ट हैं, हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म चाइना जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म अगर अपनी असेंबली में आता है, कभी कभार आता है, लेकिन आता है तब भी ये कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नहीं, अब पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म साहब को और उनके जो सपोर्टर्स हैं ना उनको नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक बल्दियाती कानून की बात है, बल्दियाती जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये फ़ैसला उस ज़माने में रिज़र्व किया गया था, तब तक हम कानून की तरामीम नहीं लेके आए थे। 2020 अक्टूबर में ये फ़ैसला रिज़र्व किया गया, और आप सबको पता है कि नवंबर 2021 में हमने बहुत सारी तरामीम ऑलरेडी कर ली थी। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। उस फ़ैसले की रोशनी में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी मशावरत कर रहा है, सिफारिशात मुरतब कर रहा है। जुमेरात के रोज़ इंशाल्लाह सिंध काबीना का इजलास होगा, इजलास के अंदर वो सिफारिशात पेश की जाएंगी, और इंशाल्लाह जो काबीना का फ़ैसला होगा उसको फिर हम सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। और फ़ैसला ये किया गया है कि सूबाई असम्बली में इसको सिलेक्ट कमेटी पार्क आवाम के लिए खोले गए ताकि लोग आएँ और साफ फ़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हों। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्तान में एक के बाद एक अपोजिशन रहनुमा की आमद। मुस्लिम लीग नून आज जलालपुर पीरवाला में जलसा करेंगे। मुल्तान की खवातीन भी अपने काफिले की सूरत में जलालपुर पीरवाला रवाना हो रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फैसल करीम से। जी फैसल करीम, बताइएगा। जी, मुल्तान में जो है सियासी पारा इस टाइम जो है वो गर्म है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो आए हैं, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ जो है वो आ रहे हैं आज, और जलालपुर में वहाँ पर जो है जलसा जो है किया जा रहा है। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। डिवीजनल सदर हैं यूथ विंग की आयशा अब्दुल्ला, इन्होंने यहाँ पर रैली निकाली है। जी, क्या कहेंगी, आपने रैली निकाली और अपने कायद को वेलकम करने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, हम यहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हुई हैं ताकि जो है ना हम अपने कायद को वेलकम कर सकें और उनको बता सकें कि साउथ पंजाब की जो ख़वातीन हैं उनमें भी बड़ा स्पार्क है और वो उनके साथ खड़ी हुई हैं, और कदम ब कदम हम उनके साथ हैं, शाना बशाना। जहाँ हमारे कायद को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ होंगे। अभी हम सब ख़वातीन जो है निकल रही हैं, यहाँ से जाएंगी हम जलालपुर में जो जलसा है हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि नून लीग की ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। जी, जैसा कि ख़वातीन जो है पुरजोश हैं और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए वो जलालपुर रवाना हो रही हैं, और उनका कहना है कि हम जलसे में भी शिरकत करेंगे, और अगर हमें पार्टी की तरफ से कॉल आई लॉन्ग मार्च की तो हम लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं। जी